Assalamu alaikum, dear students. I welcome you to these online courses. Today we'll be starting our second chapter, that is force and laws of motion. We have already completed our first chapter, that was motion, and from today onwards we'll be starting chapter number second, that is force and laws of motion. In the previous chapter, we have discussed the motion of a body in one dimension in terms of velocity, acceleration, and the distance traveled in a given time, without taking into consideration the cause of motion. Okay, we haven't studied the cause of motion. हमने वहाँ पे खाली क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पे खाली motion पढ़ा था. जैसे हमने वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था, मोशन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए गिवन टाइम. लेकिन वहाँ पे हमने कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था. व्हाट इज़ द कॉज? क्यों होती है मोशन? ये हमने नहीं पढ़ा था. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाई मोशन. मोशन क्यों होती है. ओके, सो वी विल स्टडी द कॉज ऑफ मोशन की कॉज क्या है मोशन की. In this chapter we'll study the motion of a body, taking into consideration the force that produces the motion. Okay, it's simple that cause of the motion is force. जब मोशन जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, वहाँ पे मोशन या ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है. दैट मीन्स कॉज ऑफ द मोशन इज फोर्स. सो वी विल स्टडी दैट फोर्स इन दिस चैप्टर. So this branch of physics, where we study the motion and cause of motion, is called dynamics. Okay, that's called dynamics. वहाँ पे हमने पढ़ा था, जब हमने मोशन पढ़ी थी, and without studying the cause of the motion, okay, that part of physics is called kinematics. That was called kinematics, where we study the motion but without the cause of motion. And here we will study the motion but with cause, that means with force. And this means that the cause is force. Okay, this part of physics is known as dynamics, where we study the cause of motion also. We'll study how a physical system may change with time and what causes these changes. Okay, क्या cause होती है जो ये changes ला सकती हैं. And also we'll try to understand the dynamics. We will take the basic physical laws that govern the dynamics into account. And in this chapter we will study the Newton's laws of motion, which are very, very famous in the physics. And that are also the building blocks of these classical physics. But first we need to understand the concept of force. Okay, what do you mean by force? Force क्या चीज़ है, हमें ये पहले समझना होगा. तो ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, एक है गैलीलियो और दूसरा है सर आइजैक न्यूटन. ये दोनों जो हैं ये इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के फाउंडिंग फादर्स है. इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, आगे जाने से पहले हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि फोर्स है क्या चीज़. फोर्स को आपने पढ़ा है क्लास 8th में कि फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल, और समटाइम्स इट कैन बी बोथ पुश एज वेल एज पुल. जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट या जो रेस्ट पे हो उसे मूव कराना है, तो हम क्या करते हैं, या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं. ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पे है उसको अगर हम मोशन में ला सकते हैं, लाना चाहते हैं, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई पुल और पुश इन ऑर्डर टू मूव दैट ऑब्जेक्ट. और ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास
या तो हम उसको पुल करेंगे या पुश करेंगे, ओके, टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. So we can say that force is a push or a pull, resulting from an interaction between two objects that tend to change the state of motion or shape of the object. फोर्स क्या है? फोर्स जो है या तो ये पुल है या पुश है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये इंटरेक्शन जब होगा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तभी फोर्स लग सकता है. या जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की जो है ये शेप चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट either permanently or it can be temporarily. So this is the force. So we can study here now the kinds of force. Okay, the kinds of force. These are all are examples of pull or push. You have studied it, these examples in class 8. I will move forward. So this is push, okay, and this is also push. So what are the effects of force? Here the first effect will be that a body at rest can be moved by force. Rest पे जो body होगी उसको हम force से मूव करा सकते हैं. दैट इज़ वन इफ़ेक्ट. एंड सेकेंड इफ़ेक्ट, अगर ये बॉडी जो है ये अगर बॉडी मूव कर रही है तो आई कैन स्टॉप इट हियर, ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स हियर. सो दिस इज़ द सेकेंड इफ़ेक्ट. ए बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स. Third effect is that a body in motion can be changed in its direction of motion by a force. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स. एंड हियर इज द अदर इफेक्ट. अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन इट्स शेप और साइज बाय द फोर्स. शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं. ये देखिए, अगर हम यहाँ से पुल करें और यहाँ से भी पुल करें तो इसकी जो शेप है ये चेंज होगी, ओके. और अगर हम इसी स्प्रिंग को यहाँ से पुश करें और यहाँ से भी पुश करें, ओके, तो इसकी जो शेप है ये हम चेंज कर सकते हैं. बट दिस चेंज इज़ टेम्पररी, ओके. इफ़ यू रिलीज द फोर्स हियर it will the spring will maintain its original shape, okay. This is temporarily change. So कहने का मकसद ये है कि ये जो है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है, या टेम्परली या परमानेंटली. So in a nutshell we can say a force can move a stationary body, a force can stop a moving body, a force can change the speed of a moving body, a force can change the direction of a moving body, a force can change the shape of a body. Okay. So let me talk about now the balanced force. ये balance force क्या होता है? बैलेंस फोर्स होता है कि अगर दोनों साइड से या हर किसी साइड से जो है फोर्स जो है इक्वल लग रहा है, दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस फोर्स. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं करेगा, वो एक ही जगह रहेगा, ओके. इट विल मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. याद रखिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करेंगे, उसकी जो है रेस्ट बॉडी को मूव में लाएंगे या इन मोशन में लाएंगे, तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, ओके. वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है. तो जब भी हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, दैट मीन्स एन अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ओके. ये बात आपको याद रखनी है. जब भी बैलेंस फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट हैं दैट विल नॉट मूव,
वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगता है, एक साइड से भी उतना ही फोर्स, दूसरा साइड से भी उतना ही फोर्स, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन में, इफ द रिजल्टेंट of all the forces acting on a body is zero, the force can be called the force are called balance force। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक पर्सन है, ये यहाँ से पुल कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे भी एक पर्सन जो है ऐसे पुल कर रहा है, बट और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये नीचे से पुल कर रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट हैं, ऐसे जो है ऊपर ऊपर साइड से इसको पुल कर रहा है। दैट मीन्स फोर साइड से ये जो फोर्स है ये बैलेंस्ड है, इक्वल है। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल विल नॉट मूव, सो दिस विल बी एट रेस्ट। Okay, and the block on the table is acted by many forces। यहाँ पे ये एक फोर्स है जो पुल कर रहा है, ये दूसरा फोर्स है जो पुल कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ ये रिएक्शन फोर्स है। क्योंकि अगर ये रिएक्शन फोर्स ना होता तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स था मैं उसको नीचे से दबा लेता, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो टेबल है ये ऊपर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड अ रिएक्शन फोर्स। ओके, सो फोर्स F applied by left hand is being balanced by the force F applied on the right hand। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ओके, एंड द वेट W of the block is balanced by reaction R on the table। यहाँ पे ये जो ये वाला फोर्स है विच इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इसको ये जो रिएक्शन फोर्स है ये जो है बैलेंस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, when a body at rest is acted by a balanced force, the body is not displaced, that is body remains stationary। जो मैंने पहले ही बताया कि जब बैलेंस फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। सेकंड, व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, they do not produce any acceleration on the body, that is the body continues to move with the same speed and direction। दिस मीन्स दैट जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक जो है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, लेकिन जिसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन है, ओके, यूनिफॉर्म मोशन, तो जब वो बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आ रही है, कि एक्सेलरेशन नहीं आ रही है उस बॉडी में, दैट मीन्स द बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वहाँ पे बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करेगा, दिस मीन्स दैट वो अनबैलेंस फोर्स वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, वो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें अनबैलेंस फोर्स जो है एक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, उसमें हमें जो है या तो उसको डिसलेट करना चाहते हैं हम या एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें अनबैलेंस फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वहाँ पे हमें अनबैलेंस फोर्स जो है लगाना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, दैट मीन्स द बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। देयर आर two types of forces basically. One is contact force, one is contact force, one is contact, and another one is non-contact force. Okay, another one is non-contact force.
ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है. Contact force is it's a force that is exerted by one object over the other only when they are in contact with each other. जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं तो जब वहाँ पे फोर्स एक्ट करता है दैट्स कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है ना. मस्कुलर फोर्स कब लगता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, तभी वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो सकता है. और फ्रिक्शनल फोर्स कब अप्लाई होगा? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन एक्सर्ट होती है. These are the examples of contact force. And non-contact force, when the objects are not exactly in contact. For example, magnetic force, okay, electrostatic force, gravitational force, ये non-contact force है. दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं तब भी फोर्स लगता है. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स है. दो मैग्नेट्स को आपस में जो है करीब लाते हैं तो वहाँ पे वो विदाउट इन फिजिकल कांटेक्ट वो वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं. So let me talk about now history, a little bit about its history. There was a great philosopher which is known as Aristotle, who is known as Aristotle. Okay, आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल के बारे में. तो उसने एक जो है रॉन्ग आइडिया पेश किया था. दैट्स कॉल्ड एरिस्टोटल्स फैलेसी. ओके, उसने एक रॉन्ग आइडिया जो है लगाया था. ही सेड दैट कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ. हम जो है वी ऑब्जर्व वेरियस मोशंस अराउंड अस, ओके, in everyday life, and there are instances when we set the objects in motion. Okay, for example, आपने किसी बॉल को किक किया. So ball was initially at rest, तो उसके बाद वो मोशन में चलेगी. Okay, this brings the ball in motion after some time. लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो बॉल है ये स्टॉप करनी शुरू होगी. यानी कि slowly it will slow down and then finally it will stop. So in order to impart speed to the ball, we need to kick it again. अगर हमें इसको जो है continuously motion में चलाना है इस बॉल को, तो हमें क्या करना है? हमें continuously किक जो करनी होगी इस बॉल पे, तब हम इसको जो है continuously मोशन में रख सकते हैं. Otherwise it will stop. यहाँ पे एक क्वेश्चन है. This brings a question in our mind. The question is, do we need to apply an external unbalanced force to keep the body in uniform motion? क्या हमें external unbalanced force चाहिए, है ना? External unbalanced force, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं हमें अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना है. बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता. अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. So the question is, do we need to apply an external unbalanced force to keep the body in uniform motion? ये एक क्वेश्चन है. क्या हमें अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा इस बॉल पे ताकि ये बॉल जो है मूव में हम मोशन में हम रख सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये तो लगता है ऐसे हमें ये जो है ये क्वेश्चन इजी लगता है, लेकिन ये एक काफ़ी अरसे से एक जो है एक मिस्ट्री रह गई फॉर मैनी ईयर्स. एंड बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं दे वर मिस्टेकन अबाउट इट. Aristotle stated that if an arrow is released from a bow, then it keeps flying since the air behind it keeps pushing it in the forward direction. He made an observation from such practical experiences and came to conclusion that an external unbalanced force is required to keep the body in uniform motion.
देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा कि अगर हम किसी एरो को रिलीज़ करेंगे एक बो से, तो वो जो एरो है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि पीछे से जो एयर है वो उसको पुश करता रहता है। दिस मीन्स दैट वो जो एरो है वो कंटिन्यूसली मूव मोशन में रहेगा। तो वहाँ से उसने ऑब्जर्वेशन निकाली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। उसने ये कंक्लूजन निकाला कि हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। इस बात को आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसने ये कहा कि हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। जिस तरह उसने वो उस एरो पे वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था हवा का, पीछे जो है हवा उस एरो को धक्का दे रहा था। ही मेड ए कंक्लूजन दैट हमें जो है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, उस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। सो हिज कंक्लूजन इज कि हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। ये इसका कंक्लूजन है। इसी कंक्लूजन को कहते हैं एरिस्टोटलस फैलेसी। ये एरिस्टोटल की फैलेसी थी, यानी कि ये इसका जो है रॉन्ग आइडिया था। दिस इज़ नॉट करेक्ट, जो हम अभी देखेंगे कि जो है हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। दिस मीन्स दैट अगर हम उस ये जो बॉल को हमने किक किया, तो उस बॉल को हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें उसको जो है बार बार किक करना पड़ेगा ताकि वो बॉल जो है यूनिफॉर्म मोशन में रह सके। बट दिस इज़ रॉन्ग। हाउ इज़ दिस रॉन्ग? The answer is that we do not require any external unbalanced force. Then the question here again arises, then how can we maintain that uniform speed in the object? एक और क्वेश्चन होगा, तो हम उस यूनिफॉर्म मोशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? Here the answer to this question is that वो जो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो तब स्लो डाउन होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इसीलिए वो जो बॉल थी वो स्लो डाउन हो गई। आप इमेजिन करो अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो वो बॉल जो है कभी स्लो डाउन नहीं होती। जो उसकी पहली स्पीड थी वही जो है आखिरी स्पीड होगी, यानी कि वही स्पीड जो है उसकी हमेशा से रहेगी अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती। सो ये जो स्लो डाउन है या जो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है, ये किसकी वजह से है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये स्लो डाउन होता है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो बॉल को हम एक दफ़ा किक कर लेते तो वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करता। तो यहाँ पे ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम किस लिए लगाते हैं? टू ओवरकम दैट फ्रिक्शनल फोर्स, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। दिस मीन्स दैट एरिस्टोटल वाज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों था? क्योंकि उसने बोला कि हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में जो है रखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। बट द आइडिया इज़ अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो हमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स हम लगाते हैं दिस इज़ टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, उसके लिए नहीं। यानी कि हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करने के लिए ये फोर्स नहीं लगाते। ये फोर्स हम लगाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ओके,
सो हियर द आइडिया इज, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होते हमें कोई अनबैलेंस फोर्स पीछे से नहीं लगाना पड़ता. सो हियर द एरिस्टोटल वाज रॉन्ग. एरिस्टोटल इसीलिए रॉन्ग था क्योंकि उसने फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं किया था. So this implies that had there not been any frictional force, the ball would have not slowed down, but would have continued to remain in the same state of motion. That is, would have continued to move with the same speed in the same direction. So हम यहाँ पे conclude कर सकते हैं that in absence of an external unbalanced force, a body in motion will continue to remain in a uniform motion, although it is not possible in a real life situation, as the frictional force is always present. लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशन में प्रेजेंट ये जो है अप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह है. कोई जगह ऐसा नहीं जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ना हो. ओके, और सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ.